Hi friends, myself Rahul Srivastav. I once again welcome you all in our today's video. Now this video is a detailed video on education loan. Now this is the season of taking admissions in India and abroad India, and everyone is coming to us for availing education loan. Now since I am also working as a branch head, I have, while disbursing the loans abroad India, in India, I have came across certain kind of difficulties while disbursing the loan. So with my experience, whatever I have learned, I would like to share all the details with regards to education loan, so that this knowledge could be shared and benefited among all of us. This is only a knowledge sharing video, and hope this video will benefit you. But before starting the video, I would request you to please hit the subscribe button if you have not done yet, and also press the bell icon for latest updates. And also at the same time, I would request you to take a pen and a paper, because we will be doing the detailed analysis of all about model education loan. Everything from A to Z you would need to know about this education loan scheme. So myself Rahul Srivastav, without any further delay, let's start our video. So the first question comes, who is eligible for this education loan? I mean उसका nationality क्या होना चाहिए? तो first point, let me change the color. So the first point, as I said, is he should be Indian national. वो Indian national होना चाहिए. अब क्वेश्चन आता है वेदर एनआरआईज को लोन दे सकते हैं. तो यस, इट इंक्लूड्स एनआरआईज एज वेल. एनआरआईज को भी हम लोन दे सकते हैं. नाउ ऐसे पर्सन जो फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, सी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, या स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में पैदा हुए हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिटीजनशिप बाय बर्थ, और वेयर देयर पेरेंट्स वर ऑन डेपुटेशन विद सम फॉरेन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल और एनी काइंड ऑफ एजेंसीज, एंड आर नाउ स्टडिंग इन इंडिया आफ्टर रिपार्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स. तो ऐसे लोगों के लिए लोन कैन बी कंसिडर्ड फॉर studies in India only. For studies in India only. ऐसे लोगों के लिए studies India only. Now next, because this is such facility is subject to regulation of FEMA, because ये FEMA regulation 2000 के तहत में आते हैं. Now what are the students eligibility? Students का eligibility क्या क्या होना चाहिए? तो we will discuss upon this. Students eligibility. Okay, so students eligibility में फिल सी, तो आइदर उनका एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के थ्रू उनका सिलेक्शन होना चाहिए. किसके एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद? तो HSC और इक्विवेलेंट, जो हम बोलते हैं HSC, या फिर उसको कई जगहों पे 10+2 भी बोलते हैं. इसको पास करने के बाद जहाँ भी उन्होंने एडमिशन लिया है, वेदर इट इज़ थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, तो वहाँ पे वी कुड कंसिडर एजुकेशन लोन स्कीम. बट देर आर अगेन सर्टन कंडीशंस टू दिस. एंट्रेंस टेस्ट और सिलेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन cannot be considered with sole criteria for admission to some of the postgraduate courses or research programs. Means only सिर्फ ये criteria हमें नहीं रखना है कि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के ही थ्रू वी हैव टू गिव देम एजुकेशन लोन. In such cases, branches may adopt appropriate criteria based on employability and reputation of the institute concerned. मतलब वो जो कोर्स करने वाला है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, एंड उस कॉलेज का रेपुटेशन क्या है. Based on that also we can consider sanctioning of the education loan. Now another thing is that if a student comes to you who is visually challenged or person with disabilities, can we give loans to them? It's very important point. See, person who are, or students who are visually challenged, or person with disabilities are not barred from availing loans. Means हम उनको भी लोन दे सकते हैं. could be sanctioned loan. We cannot simply deny for the reason that they are visually challenged or person with disabilities.
यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट को बोरोवर्स एलिजिबिलिटी। को बोरोवर्स की एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है? को बोरोवर्स एलिजिबिलिटी। सो जब को बोरोवर्स एलिजिबिलिटी की बात आती है तो द को बोरोवर शुड आइडियली बी ए रेसिडेंट इंडियन। जो को बोरोवर्स होते हैं वो आइडियली एक रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, पहला। NRI पेरेंट्स को भी वी कैन कंसिडर इन केस ऑफ कोलेटरलाइज लोन्स एज अ को बोरोवर और गारंटर इफ दे आर प्रोवाइडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी विच इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि जो पेरेंट्स NRIs हैं उनको भी वी कैन कंसिडर इन केस ऑफ कोलेटरलाइज लोन एज अ को बोरोवर और एज अ गारंटर इफ जो प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इफ दैट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन India, then NRI parents can also be considered as a co-borrower, right? In case of non-collateralized loans, अगर non-collateralized loans है, non-collateralized loan कितने तक में होता है? तो these are the loans less than 7.5 lakh rupees. So ऐसे loans के लिए only resident Indians to be considered as co-borrower. याद रखिएगा, only resident Indians can be considered as an co-borrower. This point is clear? Okay, we'll move on to the next one. Now, co-borrower should be parent या natural guardian of the student borrower. In case of married person, co-obligator can be spouse. अगर मान लीजिए कोई student है and if he is a married person, then उसके spouse को या parents in law, अगर कोई married student है हमारे पास, then उस केस में उसके spouse को या फिर उसके in-laws को भी हम co-borrower रख सकते हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है ना? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियंस हैं वो नहीं हैं, इन केस पेरेंट्स हैं या फिर लीगल गार्जियंस हैं या फिर जो लीगल गार्जियंस हैं इन केस वो अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस whom कैन बी कंसिडर एज एन को बोरोवर? तो उस केस में branches may consider grandparents, okay? Branches may consider grandparents as an co-borrower, right? उस केस में branches may consider grandparents as an co-borrower, और अगर grandparents भी नहीं हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है, नेचुरल गार्जियन भी नहीं है, पेरेंट भी नहीं है, स्पाउस भी नहीं है, तो इन दैट केस मेजर सिबलिंग रिलेटिव थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबल टू द बैंक एज ए को बोरोवर टू द लोन अकाउंट कुड बी टेकन. सो इफ दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल देन इन केस उस केस में क्या कर सकते हैं हम? तो मेजर सिबलिंग्स मतलब भाई बहन या रिलेटिव या फिर थर्ड पार्टी गारंटी कैन ऑल्सो बी taken as a co-borrower acceptable to the bank, who are bank के terms and conditions पर who are acceptable to the bank, right? यहाँ तक आई होप क्लियर है आपको? Okay, now let us add one more page to this. Now next, नाउ सपोज आपके पास को बोरोवर्स तो हैं बट को बोरोवर्स एट प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे वेर यू आर सैंक्शनिंग द लोन और दे आर नॉट विद द स्टूडेंट. सो इन दैट केस वेदर दे कैन एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी. तो उस केस में क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकता है? तो देर इज स्पेसिफिक कंडीशन रिलेटेड टू दैट पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकता है बट only due to exigencies of services, which means either they are in defense or in paramilitary, then they are staying abroad, means they are NRIs. तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू यू कैन एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स, राइट? यहाँ तक क्लियर है? So this leads us to an important points.
दिस लीड्स अस टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इफ़ हमारे जो स्टूडेंट है, इफ़ स्टूडेंट इज़ एन NRI और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवर OCI, तो इन दैट केस को एप्लीकेंट को हमें क्या लेना पड़ेगा? को एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया. को एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. बट इफ पेरेंट्स आर ऑल्सो NRI, अगर पेरेंट्स भी NRI हैं, इफ पेरेंट्स आर ऑल्सो NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI, तो इन दैट केस एडिशनल को एप्लीकेंट, एक एडिशनल को एप्लीकेंट हम ले सकते हैं. एडिशनल को एप्लीकेंट कुड बी टेकन हु इज़ अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हु शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड ही शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इज अबाउट क्रेडिट वर्थीनेस. व्हाट इज दिस क्रेडिट वर्थीनेस? ये क्रेडिट वर्थीनेस क्या होता है? सो normally the student borrower may not have a credit history and as such is assumed to be credit worthy because as a student you might not have availed any loan. तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री या तो जो सिबिल स्कोर है वो या तो -1 आएगा या फिर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहेगा और नो क्रेडिट हिस्ट्री, राइट? नो क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा. बट क्या बोरोवर, को बोरोवर, गारंटर, उनका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना ज़रूरी है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी ऑफ बोरोवर का, को बोरोवर का एंड अगर गारंटर है तो गारंटर का क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड क्रेडिट इफ दे बोरोवर, को बोरोवर, गारंटर शुड नॉट हैव एनी एडवर्स क्रेडिट हिस्ट्री. उनका कुछ एडवर्स क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होना चाहिए. ऑल्सो in case borrower or guarantor is not eligible due to unsatisfactory credit score, then he or she can be substituted in order of priority. तो they can be substituted in order of priority. तो priority कैसे रहेगी? तो पहले parents, then spouse, then parents in laws, then grandparents, then brothers, relative और एनी थर्ड पार्टी जिसका सिबिल या क्रेडिट वर्थिनेस शुड बी सेटिस्फैक्ट्री या गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग. और इन केस अगर प्रॉपर्टी कोलेट्रलाइज लोन से मतलब 7.5 लाख रुपए के ऊपर सिंस हमें पूरे अमाउंट का कोलेट्रल लेना पड़ता है, तो इन दैट केस कोलेट्रलाइज लोन है. अगर इफ़ इट इज़ अ कोलेट्रलाइज लोन, if it is a collateralized loan, then in that case the property owner to be taken as, जो भी उसके प्रॉपर्टी ओनर होंगे they have to be mandatorily taken as a को बोरोवर. उनको मैंडेटरी को बोरोवर लेना पड़ेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन. व्हाट आर द कोर्सेज स्टूडेंट्स कुड बी एलिजिबल फॉर? नो, इसमें 2 कैटेगरी होते हैं. पहला आता है कि इंडिया में पढ़ाई करने के लिए और दूसरा आता है एब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए, राइट? सो इंडिया में अगर पढ़ाई करना है तो देर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू विच यू कैन सैंक्शन द लोन, पहला आता है जैसे कोर्सेज एज इनिशिएटेड अंडर वेरियस गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स. ठीक है. दूसरा कुड बी एनी अप्रूव्ड कोर्सेज लीडिंग टू ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या डिग्री एंड PG डिप्लोमाज हो गया, डिग्री कोर्सेज हो गए. देन सर्टिफिकेट कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, गवर्नमेंट, AICTE, AIBMS एक्सेट्रा. कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जैसे कि लाइक आपको ICWA के कोर्सेज होते हैं, CA के होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA के होते हैं. तो इन कोर्सेज के लिए भी वी कैन सैंक्शन एजुकेशन लोन. नाउ देर आर वेरियस कोर्सेज कंडक्टेड बाय IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, then IITs, Indian Institute of Technologies, then IISCs,
देन XLRI जो जमशेदपुर में है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेजेस इन इंडिया, कोर्सेज अप्रूव्ड बाय निफ्ट, NID, इसके एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा भी वी कैन फॉर दीज लोन्स ऑल्सो वी कैन सैंक्शन। नो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज लाइक जैसे फॉर एरोनॉटिकल ट्रेनिंग के लिए, या पायलट ट्रेनिंग के लिए कोई अगर अप्रोच करता है, या फिर कोई अगर शिपिंग के लिए अप्रोच करता है, डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग के लिए अगर फॉर इफ समबडी अप्रोचेज यू फॉर नर्सिंग, देन और एनी अदर डिसिप्लिन अप्रूव्ड बाय DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, या शिपिंग इंडस्ट्री या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उनके द्वारा जो भी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी एज द केस में बी, इफ द कोर्स इज परस्यूड इन इंडिया। नाउ देर आर ऑल्सो अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफर इन इंडिया बाय रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, सो उसके लिए भी वी कैन सैंक्शन द लोन। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास अप्रोच करता है, तो हाउ वी विल know about the accreditation, affiliations, institute की address, approved courses etc, ताकि we are able to know कि okay baba, the students who are going to study or for which they are availing the loans, this is a recognized institute. So there are certain websites through which, or there are certain references through which you can know about their details such as उनका accreditations क्या है, you can also know the affiliations, of those courses, और address of the institute, उसका address क्या है, approved courses etc. So for that and उसका एक copy निकालो, and that copy should be kept with the loan documents. So what are those references, उनके references क्या क्या हैं? तो there are certain references, जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, HTTP, you can go to mhrd.gov.in, technical education one. Then you can go to some other websites as well, like http www.aicte.org.in, ये इस पे भी आप जा सकते हो. देन http://www.ugc.ac.in, you can go to this also. Then http://education.nic.in, education.nic.in, इस पे भी you can go and search for their accreditations, affiliations, their addresses, courses, approved courses, etc. And now if you want details of this, then you can ping me, I will send you the detailed references. Now next comes is about for studies abroad. Agar if somebody is going to abroad, then ABROAD, if somebody is going to abroad, then उसके लिए कौन कौन से courses होते हैं? तो for job oriented professional technical courses offered by reputed universities institutions. Now post graduation के लिए MCA, MBA, Masters, MS करने के लिए भी दे सकते हैं. Then अभी जैसे मैंने बोला for Masters you can give, then you can give for you can give for MCA, you can give for MBA, MS, etc. Then you can also for job oriented professional courses, then you can go for if somebody is going for the course which are conducted by CIMA London, CPA in US etc, then you can also avail sanction loan for those things. then जैसा हमने इंडिया में बोला था कि एरोनॉटिकल्स, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, नर्सिंग एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी अपन लोन दे सकते हैं. Now in case of MBBS course, if somebody is doing MBBS courses, so MBBS courses के लिए just ध्यान में रखना कि द कोर्सेज नीड टू हैव अप्रूवल ऑफ MCI का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए इफ समबडी इज गोइंग फॉर MBBS कोर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, इसके रेफरेंसेस कहाँ से मिल सकते हैं? जैसा कि हमने उसके यहाँ पे देखा था एक्रेडिएशन, एफिलिएशंस, एड्रेसेस वगैरह. तो इसके अगर इफ़ यू वांट टू नो द एफिलिएशंस, तो यू कैन चेक आउट जो वेबसाइट्स है, वो मैं लिख देता हूँ. पहला है https://www.ved.net/home. Next one is www.webometrics. See,
webometrics.info, राइट. नेक्स्ट है www.topuniversities.com, and last one is www.qs.com. You can go to any of these references. You can check their accreditations, affiliations, addresses, courses offered, and then take a printout of that particular course and keep it on record with your documents. Now I hope यहाँ तक clear है सब. Now there is an important point which needs to be noted. What is that important point? A very important point that needs to be noted. What is that important point? Important point is that vocational training, जो भी vocational training होता है, vocational training and skill development study courses and skill development study courses, vocational training and skill development study courses will not be covered under the model education loan scheme. They will not be covered under model education loan scheme as it is framed to be provide for लोन फॉर हायर स्टडीज़ ओनली, क्योंकि ये सारे कोर्सेज के लिए हायर स्टडीज़ के लिए ही देते हैं. सो इट विल नॉट कम अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम. आई गेस यहाँ तक एवरीबडी इज क्लियर. Now comes what are the expenses that could be considered for loan. Now this is very important. So first what are the expenses that can be considered for the loan. First we will start with फीस पेबल टू कॉलेज हॉस्टल. ये फीस जो कॉलेज या हॉस्टल को देना है ये कंसिडर हो सकता है. एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी फीस, इन ट्रैवल एक्सपेंसेस, पैसेज मनी फॉर स्टडीज अब्रॉड, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टूडेंट बोरोवर, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन बिल्स, रिसीट्स, परचेज ऑफ बुक्स के लिए, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स, परचेज ऑफ कंप्यूटर एट रिजनेबल कॉस्ट इफ required for completion of the course. Then any other expenses required to complete the course like academic and maintenance fees, study tours, project work, thesis, exchange program, etc. Now while computing loan required scholarship fees, waiver, etc., if any available to the student borrower while applying for the loan, may be taken into consideration. Now if the scholarship component is included in the loan assessment, it may be ensured that the scholarship amounts get credited to the loan account where received from the government. ठीक है. Then there are certain important terms and conditions with regards to expenses considered for the loan. क्या है? जो भी कोर्सेज मैनेजमेंट कोटा के सीट्स के तहत हैं, फीस अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट approved regulatory body for payment seats will be taken subject to future employability and viability of repayment. Reasonable lodging and boarding charges will be considered. जो reasonable lodging and boarding charges है that will be considered in case the student chooses या इज़ रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर आउटसाइड एकोमोडेशन. अगर वो आउटसाइड रह रहा है तो रीजनेबल लॉजिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस कर दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस एक्सपेंसेस शुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस. जो भी ट्यूशन फीस है, सपोज 100 रुपया का ट्यूशन फीस है, सपोज 100 रुपये का ट्यूशन फीस है तो उसका 10% विच मीन्स 10 रुपये से ज़्यादा वो बोर्डिंग और एकोमोडेशन चार्जेस नहीं होना चाहिए. करेक्ट है? फॉर द एंटायर कोर्स, पूरे कोर्स पीरियड के लिए. Now, next one is for items under item number 6, 7 and 8. मतलब 6, 7 और 8 ये दो जो आइटम, ये तीनों आइटम्स है जैसे कि बुक्स के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, एनी अदर एक्सपेंसेस जैसे कि स्टडी टूर, थीसिस वर्क, इन सब चीज़ के लिए जो हम एक्सपेंसेस देंगे, इन सब चीज़ के लिए a realistic assessment may be made so that the requirement gets fulfilled. But उसके अंदर भी certain caps है. What are those caps? Maximum expenses included under these points में, कौन से points? तो ये तीनों points may be capped at 20% of the total tuition fees. तो सपोज 100 रुपया है अगर टोटल फीस, ट्यूशन फीस, तो उसका 20% ही दे सकते हैं. मीन्स 20 रुपीज़ तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं फॉर बुक्स खरीदने के लिए या कंप्यूटर खरीदने के लिए या फिर कोई अदर वर्क to complete study tours, project work, thesis, etc. etc. Now I hope ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया है सबको. नाउ कम्स क्वांटम ऑफ फाइनेंस. क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना दे सकते हैं? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑलवेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो होता है वो हमेशा नीड बेस्ड फाइनेंस होता है. इट इज़ ऑलवेज नीड बेस्ड फाइनेंस, राइट. वो हमेशा नीड बेस्ड फाइनेंस ही होता है.
और मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. देन वी हैव टू डिसाइड ऑन सिक्योरिटी क्या अवेलेबल है, सिक्योरिटी अवेलेबल, एंड देन what are the future employability of that particular course that student is undergoing, future employability. So based on that we decide the quantum of finance based on all these three things, right? Now one important point that needs to be noted is, very important point is that loan amount, जो भी loan amount greater than 7.50 lakhs है, ये मैंने पहले भी बताया है, जो भी अमाउंट ग्रेटर देन 7.50 lakhs है, इज टू बी कोलेटरली सिक्योर्ड, इट हैज़ टू बी कोलेटरली सिक्योर्ड, इट हैज़ टू बी कोलेटरली secured by tangible collateral security of suitable value acceptable to the bank, along with assignment of future income of the student for payment of installments, right? Now next one is margin money. तो मार्जिन मनी में अप टू 4 lakhs जो मार्जिन होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज़ नील, मीन्स दे हैव टू कंट्रीब्यूट नथिंग. एंड अबव 4 lakhs इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फॉर अगर इंडिया में पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट तो उसके लिए 5% है, एंड इफ़ ही इज़ स्टडिंग अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए 15% मार्जिन इज़ ज़रूरी. नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वेन एवर यू आर डिसबर्सिंग द लोन, जब भी हम लोन डिसबर्स कर रहे हैं देन सपोज, तो दैट शुड बी स्टेज वाइज मीन्स अगर उस फर्स्ट ईयर का फीस दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का फीस सपोज जो भी अमाउंट है फर्स्ट ईयर का जो फीस दे रहे हैं उसके साथ उसका फंड्स, उसका मार्जिन मनी जो 5% होगा, सपोज 100 रुपया है तो उसमें 5 रुपया प्लस ऐड करके 105 रुपया ही फीस देना है. या अगर उसका 90 सपोज फीस 105 रुपया है तो सपोज फीस 100 रुपीज़ है तो 95 जो लोन है और प्लस 5 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ ही उसको डिसबर्स करना है. अलॉन्ग विथ हिज मार्जिन मनी we have to disburse that loan, and that should be based on the demand from the college, universities, whatever the case may be. ठीक है, इसका मतलब ये भी यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्जिन स्टिपुलेटेड इन द लोन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू बी कंट्रीब्यूटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस, ये हमेशा प्रो राटा बेसिस पे होगा. ड्यूरिंग ईच डिसबर्समेंट्स मार्जिन जो है विल बी डिपॉजिटेड इन द सेविंग्स अकाउंट, जैसा मैंने बताया वो सेविंग्स अकाउंट में जाएगा मार्जिन स्टूडेंट का, and loan component will be debited to the loan account and the total amount will be remitted to the college, institute, university. Never disburse that amount except in few cases in their savings account. It should be directly debited to the college or institution. Okay, right? Now rate of interest, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, द इंटरेस्ट शुड बी डेबिटेड मंथली ऑन सिंपल बेसिस, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट पे ही वो इंटरेस्ट डेबिट होगा. कब? ड्यूरिंग द रिपेमेंट हॉलीडे या मोरेटोरियम पीरियड, एंड इट विल बी कंपाउंडेड आफ्टर मोरेटोरियम, मीन्स ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, जब वो मोरेटोरियम पीरियड मीन्स उसका कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर जो यूनिफॉर्म रहता है सबके लिए, मीन्स अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल प्लस 1 साल उसको जॉब वगैरह लगने के लिए, तो 4 साल के अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे डेबिट होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज, ये जो साल बोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मोरेटोरियम पीरियड. यहाँ तक क्लियर है? अगर इफ इज़ नॉट पेइंग देन पेनल इंटरेस्ट एट 2% will be charged for the overdue amount for the period of default over and above the applicable rate of interest. This is applicable for loans above 4 lakhs only. But ये जो penal interest वाला point है ये applicable है for loans above greater than 4 lakhs only. up to 4 lakh के लिए कोई penal interest नहीं लगाना है, right? Education loan to children of employees at RLLR only. ठीक है. Now next one, interest concession. इंटरेस्ट कंसेशन में व्हाट वी कैन से, इंटरेस्ट कंसेशन 1% का इंटरेस्ट कंसेशन मिलता है लोनीज को इफ इंटरेस्ट सर्विस रेगुलरली एज एंड व्हेन अप्लाइड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड व्हेन द रिपेमेंट हॉलीडे स्पेसिफाइड फॉर इंटरेस्ट रिपेमेंट अंडर द स्कीम.
दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऑप्शन ऑफ सर्विसिंग द इंटरेस्ट ऑन इट्स एप्लीकेशन इज विद द बोरोवर। वो इंटरेस्ट के लिए सर्व ले सकते हैं, इसका बेनिफिट 1% का नहीं भी ले सकते। कब ले सकते हैं? जब वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड में सर्व कर रहे हैं तो 1% इंटरेस्ट कंसेशन उनको मिलेगा। द कंसेशन इज अवेलेबल फॉर द मोरेटोरियम पीरियड ओनली, मतलब जो कोर्स पीरियड और यूनिफॉर्म जो 1 साल है उसके लिए ही इंटरेस्ट कंसेशन मिलेगा 1% का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा एडिशनल कंसेशन भी मिलता है, अदर इंटरेस्ट रेट कंसेशंस मिलता है, जैसे किसी का हाउसिंग लोन है, कोई गर्ल स्टूडेंट्स है, कोई किसी का कुछ अकाउंट होल्डर है। इट वुड डिपेंड फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो बैंक टू बैंक वो डिफर करता है, एंड इन दैट केस इंटरेस्ट रेट कंसेशन हम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो अप टू 7.5 लैक्स, अप टू 7.5 लैक्स का लोन दे रहे हैं तो सिक्योरिटी में क्लीन होगा, देयर विल बी नो सिक्योरिटी, देयर विल बी क्लीन, बट पेरेंट्स गार्जियन टू बी जॉइंट बोरोवर्स, पेरेंट्स और गार्जियंस को जॉइंट बोरोवर्स रखना है। ऑल एलिजिबल एजुकेशन लोन शुड बी कवर्ड अंडर CGFSCL, शुड बी कवर्ड अंडर CGFSCL यानी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, इसके अंडर सबको कवर करना है। एंड पेरेंट्स गार्जियन टू बी जॉइंट बोरोवर्स। अब 7.5 लाख का जो होगा तो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 7.5 लैक्स, तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रही है, अगर कोई कस्टमर इफ़ दे आर मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का जो भी रियलाइजेबल वैल्यू होगा उसका 110% तक ही अपन लोन दे सकते हैं। दिस वुड अगेन डिपेंड फ्रॉम बैंक टू बैंक. So, in case of immovable collaterals, realizable value should cover 110% of the loan amount plus एक important point है accrued interest जो होगा if any during moratorium and owner of the property will be as joint borrower or guarantor. And if it is a liquid collateral, अगर liquid collateral है तो it is very easy, it is very simple. Then if it is a liquid collateral, then the liquid collaterals are always preferred ones with values covering 100% of the loan amount, with value covering 100% of the loan amount plus accrued interest if any during the moratorium period जो कलेक्ट होगा। ये दोनों अपन सिक्योरिटी लेते हैं। मॉर्गेज के लिए आरबी का देखते हैं एंड लिक्विड कोलेट्रल के लिए 100% प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, राइट। हाँ, इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, इफ़ यू आर गिविंग लैपटॉप्स और इफ़ यू आर गिविंग एनी कंप्यूटर फॉर स्टडी पर्पस, जैसा कि हमने फीस पे देखा था, तो दैट शुड बी हाइपोथिकेटेड टू द बैंक that is financing the loanee or the borrower or the student, right? यहाँ तक क्लियर है। Now acceptable securities and recognized value. Now next is acceptable securities and recognized value, मतलब कौन से सिक्योरिटीज़ वो दे सकते हैं और उनकी वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है। तो पहला आता है FDR। पहला आता है हमारा FDR। तो FDR में क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस एक्रूड इंटरेस्ट होगा, दैट विल बी टेकन एज वैल्यू टू बी रिकॉग्न्ड, राइट। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देता है अपना तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। हमेशा उसका जो सरेंडर वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी टेकन एज कोलेट्रल सिक्योरिटी और कैन बी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर दे रहा है, इफ समबडी इज गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ओनली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूडिंग SGBs आर वैलिड अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब या तो SGBs या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वैलिड है। तो उस केस में क्या होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर है वो वैल्यू विल बी टेकन एज रिकॉग्न्ड वैल्यू and that should be accepted as security. If somebody is giving as NSCs और किसान विकास पत्रास, तो उसमें प्रिंसिपल प्लस एक्रूड इंटरेस्ट है, वो वैल्यू वी विल बी गिविंग और विल बी टेकिंग। एंड इफ समबडी इज मॉर्गेजिंग द फ्लैट विच इज SARFAESI compliant, then in that case always it should be realizable value, मतलब अगर सपोज उसका पहले यू विल हैव टू टेक आउट वैल्यूएशन के बाद उसका 3 तरह का वैल्यू आता है। दिस इज अनदर टॉपिक, दिस वी विल बी डिस्कसिंग सम टाइम लेटर। उसके 3 तरह के प्रॉपर्टीज वैल्यूज़ आते हैं। पहला तो मार्केट वैल्यू, दूसरा आता है डिस्ट्रेस वैल्यू और एक आता है रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमको इन तीनों में से रियलाइजेबल वैल्यू पकड़ना है, रियलाइजेबल वैल्यू ही वी विल बी टेकिंग एज रिकॉग्न्ड वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है?
I guess everybody is clear with this. Now we will move on to our next one. What could be the repayment period? तो repayment period जो है, जो भी repayment period है, repayment period जो है आफ्टर मोरेटोरियम के बाद एजुकेशन लोन में इट इज़ ऑलवेज अप टू 15 ईयर्स फॉर ऑल लोन्स, सभी प्रकार के लोन्स के लिए इट विल बी 15 ईयर्स और प्लस जो मोरेटोरियम है दैट यू विल हैव टू ऐड. एंड इसमें हमेशा रिपेमेंट ऑप्शन जो रहेगा वो हमेशा EMI रहेगा एंड इट विल बी ऑन मंथली बेसिस. इट विल बी ऑन MONTHLY मंथली बेसिस. इट विल बी ऑन मंथली बेसिस. सो रिपेमेंट पीरियड भी क्लियर हो गया है. इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि देर आर सर्टेन कोर्सेज लाइक यू नो वेयर रिपेमेंट पीरियड could be you know changed. What are those cases? Like in case of doctors, तो डॉक्टर्स में उनको टाइम लगता है थोड़ा जमाने में अपना धंधा या बिजनेस. तो उस केस में क्या होता है, वी कैन कंसिडर टेलीस्कोपिंग ऑफ रीपेमेंट विथ स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स विथ पैसेज ऑफ टाइम, और वो कंसिडर कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज विद्या लक्ष्मी पोर्टल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई अंडर विद्या लक्ष्मी पोर्टल. विद्या लक्ष्मी पोर्टल में उनको अप्लाई करना मैंडेटरी है. एंड इफ समबडी इज कमिंग टू यू विदाउट अप्लाइंग विद्या लक्ष्मी पोर्टल देन यू कैन नॉट रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट. आप ऑफलाइन एप्लीकेशन ले लो एंड देन लेटर ऑन यू कैन टेल हिम टू अप्लाई टू विद्या लक्ष्मी पोर्टल एंड देन यू कैन अपडेट द ID नंबर ऑफ दैट विद्या लक्ष्मी पोर्टल इन योर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, वट एवर द केस मे बी, राइट. विद्या लक्ष्मी पोर्टल का जो लिंक है आई जस्ट एक्सप्लेन दैट लिंक. इट इज़ www.vidyalakshmi.co.in. इसमें ही अप्लाई करना पड़ता है, राइट. यहाँ तक क्लियर है. Now next is very important aspect which is disbursement. डिसबर्समेंट कैसे करना है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है स्टडीज़ इन इंडिया. अगर इंडिया में पढ़ाई कर रहा है तो जो भी उसका फीस होगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, दैट वी हैव टू डायरेक्टली रेमिट थ्रू RTGS और नेफ्ट, वट एवर द केस में बी, थ्रू RTGS और नेफ्ट टू द कॉलेज अकाउंट या institute's account, right. But there are certain things that can be directly remitted to their savings account as well. वो चीज़ें क्या हैं, तो expenses not payable to the education institutions directly but included in the estimates. but वो जो फीस स्ट्रक्चर दिया है, जो एस्टिमेट दिया उसमें इंक्लूडेड है. वो जैसे कि मेस चार्जेस हो गए, ठीक है. देन जैसे हो गए ट्रैवल एक्सपेंसेस, आने जाने का जो खर्चा हो गया. देन कॉस्ट ऑफ बुक्स या फिर कोई इक्विपमेंट है जैसे कि लैपटॉप हो गया या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है या यूनिफॉर्म्स है अगर कुछ, तो इन दैट केस ऑल्सो इट कुड बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द, ये सारी चीज़ों के लिए वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर SB अकाउंट. वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर. Now one important point to be noted is that जितने भी आप ट्रांसफर्स करोगे all has to be done through NEFT, RTGS or any electronic transfer and no cash payment has to be made in any manner. Okay, यहाँ तक क्लियर है. Now दूसरा कैटेगरी is about abroad. मुझे जो दिक्कत होती थी वो एब्रॉड के केस में ही हो रही थी. तो एब्रॉड के केस में जनरली व्हाट वी डू, वी ट्रांसफ़र टू देयर सेविंग्स अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट से फिर वो हमारे ऑथराइज्ड जो फॉरेक्स ब्रांचेस हैं वहाँ से इट गेट्स रेमिटेड टू द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और द कॉलेजेस, राइट. बट अगेन देर आर सर्टेन कंडीशंस, देर आर स्टिपुलेटेड कंडीशंस रिलेटेड टू दिस. पहला, अगर इफ इट इज़ मेंशन दैट दे नीड टू अप्लाई थ्रू सम थर्ड पार्टी एजेंसी, जो जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी होते हैं जहाँ मैंडेट होते हैं इंस्टीट्यूट से,
तो वहाँ जहाँ पे ट्रैवल कार्ड्स वगैरह सब चीज़, फॉरेन ट्रैवल कार्ड या जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है वो मिलती है, तो उस केस में दे कैन डू सो टू थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज। वहाँ का रिसिप्ट एंड ऑल दोस प्रूफ यू विल हैव टू कीप दैट, एंड वहाँ उसका एक अलग से एनेक्चर भी आता है दैट यू हैव टू टेक सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर। थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज के थ्रू भी दे कैन, इंटरमीडियरीज के थ्रू भी दे कैन रेमिट द फंड्स, राइट, या फिर ऑथोराइज्ड ब्रांचेस के थ्रू। नाउ important point is that while disbursing the loan in case of abroad cases there are certain scenarios. वो scenarios में you have to ensure that, because ऐसे सीनारियोज होते हैं जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट डिसबर्सिंग प्रायर टू वीज़ा एप्लीकेशन और प्रायर टू कॉलेज का जो फीस वगैरह देते हैं, अगर वो आप पहले ही नहीं करते हो तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट द वीज़ा। सो उन केसेस में क्या करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली 2 सिनारियो होते हैं। पहला सिनारियो जो उस वीज़ा वाले में या उस केस में 2 सिनारियोज होते हैं। पहला सिनारियो ये होता है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़ हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस या लिविंग एक्सपेंसेस बिफोर इशुएंस ऑफ एडमिशन लेटर। मतलब एडमिशन लेटर आपको नहीं मिला है, एडमिशन लेटर नहीं मिला या वीज़ा नहीं मिला है, एंड बिफोर दैट दे आर इंसिस्टिंग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वीज़ा इशुइंग अथॉरिटीज़ हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, राइट, या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या और कुछ जो होंगे, या फिर GIC हो गया। तो उस केस में क्या करते हैं, द अमाउंट विल बी रेमिटेड बाय द ब्रांच या फॉरेस्ट ऑथोराइज्ड ब्रांचेस एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, राइट। दूसरा, डिसबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू बी मेड ओनली इन केसेस वेयर द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ द मनी इन केस द वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उस केस पे रिफंड मिलना चाहिए। फीस एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर टर्म शैल ओनली बी पेड, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टर्म है वही पे करना है। एंड ऑल्सो अगर एनी शॉर्टफॉल होता है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन में तो वो बोरोवर बेयर करेगा, ठीक है। एंड विद इन 90 डेज ब्रांचेस को ऑब्टेन करना है एडमिशन लेटर की कॉपी, स्टूडेंट का कॉलेज ID कार्ड एंड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स वीज़ा विद इन 90 डेज और नेक्स्ट डिसबर्समेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ये नहीं मिला है तो फर्दर डिसबर्समेंट अलाउड नहीं रहेगा, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। Now next important scenario is college, university, visa issuing authorities has requested for proof of funds. मतलब कि they want proof of funds. What do they want? They want proof of funds. Who want? तो visa issuing authorities or college or institute, right, or university has requested for proof of funds. They have requested for proof of funds. तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? उस केस में द अमाउंट जो है, अमाउंट विल बी डिसबर्स टू देयर सेविंग्स अकाउंट, डिसबर्स बाय द ब्रांच टू देयर सेविंग्स अकाउंट। उनके सेविंग्स अकाउंट में ये पैसे डालोगे आप, एंड विल पुट अ होल्ड और लीन ऑन दैट अकाउंट, फीस एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर शैल ओनली बी डिसबर्स्ड, एंड उसके लिए एक लेटर ऑफ कंसेंट ले लेना आप। एंड वंस द कॉपी ऑफ वीजा इज रिसीव्ड, द ब्रांच टू रिमूव द होल्ड ऑन द सेविंग्स अकाउंट and remit tuition fees directly to the account of the institute university by debiting SB account, leaving the remainder and balance for living expenses. यहाँ तक क्लियर है? ये 2 सिनेरियोज क्लियर हैं। लास्ट वाला एक और सिनेरियो होता है जहाँ पे वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर प्रूफ ऑफ फंड्स बिफोर इशूइंग ऑफ एडमिशन लेटर बाय द सैंक्शन लेटर। तो उस केस में no disbursement will be allowed, no disbursement has to be done, only sanction letter has to be shown, only sanction letter to be provided, right? यहाँ तक क्लियर है? also try to check with those visa issuing authorities or college institutions what are their particular mandates with respect to remittance of the funds in case of abroad loans, right? यहाँ तक clear है? So friends, I suppose that I have covered almost all the important aspects with related to model education loan scheme, both for studies in India and for studies abroad. इसके बाद भी if you are having any kind of doubt, then please feel free to contact me or ping me on my WhatsApp number, or you can anytime call me.
whatever experiences I have gone through with regards to disbursement of the loan, with regards to education loan, that all I have shared with you. I am not an expert on this subject, and I request you to, if you want to go to all the details, then you can go to your particular bank website or circular, whatever the case may be. So I guess this video was helpful to you. In our part 2 of the video, we'll come out with all the subsidy schemes that are related to education loan, and we will discuss all those subsidy schemes in detail. So I hope this video was helpful to you. Kindly do subscribe to my channel if you have not done yet, and do not forget to share this video in other groups as well, so that everyone gets benefited with that. Thank you. Please treat this video with regards to knowledge purpose. Thank you for watching the video.